Hello everyone, this is Sarthak, and today we have Mr. Abhishek Mishra, founder and CTO of Paisav Technology. Welcome, Mr. Abhishek. Thank you, Sarthak. How are you doing? I'm doing great, Abhishek. Abhishek, can you please tell about yourself and your business? Yeah. Hi everyone. My name is Abhishek Misra. I am founder and CTO at Paisav Technology. At Paisav Technology, we work on UAV, where we are working on drones, advanced anti-drone technologies. We are developing cutting-edge solutions, like we are working on developing our own drone operating system. We are working on swarms of drone, which can go and like avert any coordinated attack, as well as do a attack if needed. Uh, Apart from Pfizer Technology, if I talk about my background, I have done my BTech from NIT Jaipur, and then I did my master's from BITS Pilani. I did a specialization in algorithm from Stanford. Before starting my own company, Pfizer Technology, I worked with Adobe, Motorola, Accenture. So that's a क्या bit बात about. है जी। पहले एनआईटी फिर स्टैनफोर्ड इतनी ज्यादा एजुकेशन। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो अभिषेक जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए यार, आप ड्रोन्स के लिए काम कर रहे हो, विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी यूनिक बिजनेस। वेरी वेरी यूनिक बिजनेस। मुझे बताइए यार, इतना यूनिक आइडिया आपको कहाँ से आया? तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं, तो हमने बेसिकली कॉलेज में हमारा एक रोबोटिक होता लैब्स वगैरह होती थी, और एक फोरम भी हुआ करता था जहाँ पे हम लोग डिफरेंट रोबोट्स वगैरह बनाते थे, compete करते थे। तो वहाँ से एक थोड़ा सा पैशन था टुवर्ड्स रोबोटिक। And recently, when like in January 2022, when we were like discussing about drones and all, तो उस समय what we were seeing, with due respect to all of the companies, हम देख रहे थे कि इंडिया में जो भी ड्रोन्स आ रहे हैं ना, वो मेड इन इंडिया कम है, और बेसिकली लोग रीब्रांडिंग करके बाहर के ड्रोन से यूज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी जा रहा था, which we felt कि नहीं, this is the need of the hour, we should stand up, we should use our expertise and create something made in India. That's how we decided to start this UAV vertical. And within a span of 8 to 9 months, we completely developed our made in India drone. That too from open source, not from any Chinese thing or something like that. Totally open source, Linux based. We created that. We applied different kind of algorithm there, और उसको modify करके भी हमने इसको बनाया। तो वहां से हमने एक शुरुआत किया, एंड धीरे धीरे मतलब आप लोगों का जैसे सहयोग मिलता रहा, एंड ऑडियंस आल्सो लाइक दैट, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आल्सो लाइक आवर वर्क। धीरे धीरे वी स्टार्टेड ग्रोइंग। अमेजिंग अभिषेक। पर अभिषेक, पॉइंट ये आता है, जब आप ड्रोन की बात करते हैं, जब आप आईओटी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, तो ये बड़े कॉस्टली आते हैं। और आपने बोला कि आप कॉलेज क्लब से कर रहे हैं ये सब चीजें। फंडिंग कहाँ से लाते थे आप इसकी? तो अभी तक तो वी आर बूटस्ट्रैप्ड, आई वुड से, बट वी आर प्रोडक्टिव सिंस डे वन। तो जैसे हमने पाइजर 2018 में स्टार्ट किया था, और ड्रोन का वर्टिकल हमने 2022 में स्टार्ट किया। तो हमारा एक और प्रोडक्ट है, टेक प्रोडक्ट सरल जिसको कहते हैं, वो 3D AR AI बेस्ड है, एंड विच सेल्स लाइक, आई वुड से कि हॉट के जैसे बिकता है। दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, which help us to like pump in the money into this drone R&D. And now हमारा जो ड्रोन वाला वर्टिकल है, that also become profitable. So basically we are managing it from our tech vertical as well as from our drone vertical revenue. बट हाँ, वी नीड टू स्केल। तो अभी मतलब आपके माध्यम से भी मैं, अगर इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, तो उनसे अपील करना चाहूंगा कि वी वांटेड टू रीच आउट टू यू फॉर स्केलिंग एंड मेकिंग इट अ मच मोर लार्जर। So we are pretty much open for investment also. Definitely, and many investors are even seeing our podcast nowadays, so definitely they will connect you. So Abhishek, the point is, when it comes to a startup, it comes with a lot of challenges. What is the biggest challenge you faced? So there are multiple challenges actually which we are facing being a startup founder. मॉनेटरी इज वन ऑफ देम, आई वुड से। वो सभी फेस करते हैं जो भी स्टार्टअप बनाते हैं। इसके अलावा जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने जस्ट उसके बाद कोविड आ गया, और हमारा जो प्रोडक्ट था वो एडटेक से रिलेटेड था। तो उस समय, और वो हमने क्या ऑफलाइन बनाया था, सो दैट वी कैन कैटर लार्जर ऑडियंस, गांव के बच्चे भी पढ़ सके। कोविड में तो लगभग 2 years वी हैड टू टेक अ बैक सीट, बट उस समय वी लेवरेज द टाइम इन डूइंग R&D। तो जैसे कोविड के समय एक हमने इंदौर एयरपोर्ट पे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक फिजिकल डिस्टेंसिंग सिस्टम बनाया था,
क्योंकि जब 2020 में वैक्सीन भी नहीं आई थी उस समय मतलब एक ही ऑप्शन था आपके पास कोरोना से बचने का, फॉलो अ प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग सिस्टम, वियर मास्क, ये 2 तरीके से आप बचते थे। तो दैट वी वेंट एंड सोल्ड टू डिफरेंट अथॉरिटी और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो इंदौर एयरपोर्ट पे वो 2 एंड हाफ ईयर वो चला एंड हमने काफ़ी एक वो चैलेंज था उस समय। चैलेंज ये आ रहे थे, घर वाले बोल रहे थे कि जैसे मतलब सबके घर वाले थोड़ा बहुत टेंशन में तो रहते हैं कि वाई आर गोइंग टू एयरपोर्ट सो फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वैक्सीन भी नहीं है, कोरोना सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट से ही फैल रहा था, तो एक वो चैलेंजेस था। देन बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू एंटर इनटू स्टार्टअप, बेसिकली जैसे सबका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, मतलब हमारे फाउंडर्स का, तो लीविंग दैट फैट पैकेज एंड देन वो स्ट्रगल फेज में आने का, तो वो भी एक चैलेंज है। एंड वी लर्न लॉट ऑफ थिंग एक्चुअली। आई वुड से कि मतलब जितने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं वो उतना ही ज़्यादा आपको ग्रूम करते हैं एंड दैट हेल्प यू टू एक्सेल मोर एंड मोर। तो एज ऑफ नाउ लाइक यही सारे चैलेंजेस हमने फेस किए थे। अमेजिंग। अभिषेक जी, जो इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं वो एक्चुअली कहीं न कहीं मेरी फेवरेट इंडस्ट्री, बिकॉज़ आई एम आल्सो एन आईआईटी गाय। या ओके। सो अब हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा। ये सारी चीज़ें आपसे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब हाँ, आपकी इंडस्ट्री में ये चीज़ कैसे इम्पैक्ट डालने वाली है, ये चीज़ आप मुझे बताइए? ठीक। तो जैसे अगर मैं एआई की बात करता हूँ, एआई मशीन लर्निंग की बात करता हूँ, तो जो हमारा एक एडटेक प्रोडक्ट है सरल, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ किया, छोटे बच्चों के लिए हमने बनाया उसको। तो उसमें बहुत ज़्यादा एआई चाइल्ड के बिहेवियर को देखने के लिए, ऑटोमेटिकली एनालाइज करने के लिए, चाइल्ड को उसमें क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लासरूम में उनके अंदर बर्ड एनिमल सी क्रिएचर है। अब जैसे आप लॉयन के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चों के बीच में लॉयन आ गया, बट आपको रियलिस्टिकली बताने की लॉयन रहता कहाँ पे? तो विद द हेल्प ऑफ एआई वी रेंडर द बैकग्राउंड कि हाँ, लॉयन जंगल्स में रहता है। तो वो सारी चीज़ें। फिर एक हम उसमें एक हमारा मॉडल होता था सरल आई टेस्ट, जिसमें हम ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉपर डायग्नोस्टिक, बट काफ़ी हद तक हेल्प करता है बच्चों को बताने के लिए कि कुछ आँखों में गड़बड़ी है या नहीं। एंड लगभग अभी तक हमने 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस डिटेक्ट किए हैं जिसमें बच्चों को क्लासरूम के थ्रू ही डिटेक्ट हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम है, एंड देन दे वेंट टू डॉक्टर और उनका निकला एंड वो दे वेर नाउ गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं बताते हैं, मतलब यू कैन इमेजिन 4 साल का 5 साल का बच्चा क्या ही बताएगा कि मुझे आँखों में प्रॉब्लम है। एग्ज़ैक्टली। So with the help of AI and this immersive technology, we are solving that problem. जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट था फिजिकल डिस्टेंसिंग सिस्टम जो हमने लगाया था, वो भी हम उसमें हमने एआई का एक्सटेंसिवली यूज किया था कि अगर दो लोगों के बीच का डिस्टेंस 3 फीट से कम नहीं है तो बजन अलार्म। उसके अलावा हमें फिर वहाँ पे एक ध्यान ये भी रखना पड़ता था कि आप खड़े हैं या वॉक कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब कई बार आप वॉक करते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाए तो भी चलता है, मतलब इट्स वॉकिंग डिस्टेंस। तो उन सारी चीज़ों में एआई हेल्प अस अ लॉट एक्चुअली कि टू डू नॉट क्रिएट अ फॉल्स अलार्म, वरना लोग फिर एयरपोर्ट पे ऐसे ही इतना रश रहता है और फिर लोग अननेसेसरी का मतलब इरिटेट हो जाएंगे इसकी वजह से। जो हम अभी ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन में बहुत हेवीली यूज कर रहे हैं एआई का। जैसे मैं अभी बताऊं तो इंदौर, जैसे आप भी इंदौर से, मैं भी इंदौर से, तो अपना जो अभी न्यू ईयर यस। वाला था, ये जब अपने राम मंदिर की स्थापना हुई थी, तो हमने अपने जो हाँ। ड्रोन में जो राम मंदिर के दिन बहुत सारी रैली रैली निकली थी, तो जो सर थे पुलिस कमिश्नर सर, उनके हिसाब से हमने ड्रोन जब उड़ाया था, तो वी वर कैप्चरिंग फेसेस ऑल्सो। जहाँ पे हमें कुछ कुछ एरिया थे जो सेंसिटिव एरिया थे, जहाँ पे पुलिस वे फ्लाइंग द ड्रोन, तो ऑन द फ्लाई दे वर कैप्चरिंग द फेसेस ऑल्सो। कि क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर आप 4 घंटे 5 घंटे ड्रोन उड़ा रहे हैं तो 5 घंटे की रिकॉर्डिंग देखना इट्स डिफिकल्ट। और अगर मैं बताऊं कि 5 घंटे में हमने ये 50 या 100 लोग थे रैली में, तो इट गिव ए समराइज, मतलब उनका टाइम बहुत बचता है। बेसिकली 5 मिनट में दे कैन गो थ्रू दो 50 फेसेस। वो हम ये यूज कर रहे हैं। हम गोवा के बीच में जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, मतलब इफ समवन इज बीइंग ड्रॉन, तो एआई यूज करके हमारा ड्रोन डिटेक्ट करता है कि ही इज बीइंग ड्रॉन, और फिर उसको उसके पास जाके उसके हाथ में लाइफ सेविंग जैकेट देता है। और फॉरेस्ट में वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ एआई वी आर डिटेक्टिंग फायर। अगर कई बार क्या होता है कि स्मोक सेंसर्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, बट अगेन विजुअली इफ वी सी सम फायर जो ज्यादा है, तो ये कि उससे वी आर डिटेक्टिंग दैट। और देयर कैन बी मल्टीपल अदर यूज केसेस, कुछ मैं आपको अभी पॉडकास्ट में नहीं डिक्लेयर करता हूं ड्यू टू सेंसिटिविटी, व्हिच वी आर वर्किंग विद डिफेंस डिपार्टमेंट, बट वी आर यूजिंग इट वेरी एक्सटेंसिवली एआई, तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल आपकी बातों से मुझे इतना समझ आया है कि दुनिया में कोई भी टाइप का ड्रोन होगा, आपकी कंपनी वो ड्रोन बना ही देगी। तो हम उसके लिए हमें आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अब। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि व्हाटएवर स्पेसिफिक यूज़ केस इफ यू नीड, वी वुड लव टू लाइक सॉल्व योर प्रॉब्लम। अ, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल में पढ़ रहा था, उस पे आपने कुछ बायो इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स के बारे में कुछ मेंशन कर रखा था। क्या है हाँ, ये? तो बेसिकली बायो इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स मुझे बहुत फैसिनेट करता है, अपार्ट फ्रॉम दीज़ ड्रोन्स एंड टेक।
तो मैंने बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाया था आई थिंक 4 साल पहले, वेयर आई वाज़ एबल टू पार्स माय ओन ब्रेन सिग्नल्स एंड मैं अपने ब्रेन के सिग्नल को पढ़ पा रहा था, मेनली डेल्टा वेव्स को, और उससे एक लाइट को टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया। फिर मैंने एक शॉपिंग कार्ट पे शॉपिंग करी जस्ट वेयरिंग अ हेडसेट। तो मैंने अपने ब्रेन की ईईजी सिग्नल्स को पार्स किया था यूजिंग एआई। फॉर सम रीजन ड्यू टू कॉस्ट हम उसको कमर्शलाइज नहीं कर पाए, बट विद सिंस यू आर हियर एंड मेनी इन्वेस्टर आर वाचिंग दिस, मतलब आई वुड लव टू इनवाइट, अगर कोई इंटरेस्ट दिखाए तो उसका काफी स्कोप है। एक स्कोप ये है कि अगर इफ सम पर्सन ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इफ दे आर नॉट एबल टू मूव देयर लिम्स एटलीस्ट, तो विद क्योंकि हम ब्रेन के सिग्नल्स को पास कर पा रहे हैं, तो हम हाथ वगैरह बहुत आसानी से उठा सकते हैं विद मैकेनाइज्ड आर्म। कोई और ज्यादा सिवियर है, मतलब जिसको कुछ मतलब जो बोल भी नहीं पा रहा है, इनफैक्ट उस स्टेज पे पहुंच गया, तो वहां पे भी एटलीस्ट वो सोच कर भी, क्योंकि हम वी आर एबल टू पास द ब्रेन सिग्नल, सोच कर भी वी कैन डू थिंग कि मुझे पानी चाहिए या देयर इज सम इमरजेंसी, दोस काइंड ऑफ थिंग वी कैन डेफिनेटली डू। तो बायो इंजीनियरिंग फैसिनेट्स मी, मतलब मेरे ख्याल से आपको भी फैसिनेट करते ही होगा। तो बहुत ज़्यादा। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, आई वांट टू नो अबाउट दिस बिकॉज़ आई एम जस्ट डेफिनेटली, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। दैट्स तो वो अमेजिंग। एक हॉबी प्रोजेक्ट ही था जो बनाया था, बट हाँ, वुड लव टू वर्क मोर इनटू दैट। अमेजिंग अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपने ये भी मेंशन करा था लिंक्डइन प्रोफाइल पे, क्योंकि मैं लिंक्डइन बहुत अच्छी तरह स्क्रॉल करता हूँ, है ना? सो नेक्स्ट टाइम जो भी होस्ट आएगा अपना लिंक्डइन एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछने वाला हूँ। आपका जो पहला टेडएक्स एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा था। मैं शुरू में काफी नर्वस था क्योंकि टेडेक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत तो ज़्यादा। शुरू में नर्वस था, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे मैंने बोला कि हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस इन एवोल्यूशन। तो कुछ बेसिक यूज केसेस लिए एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे आपके और हमारे घर में जो हमारी नानी या दादियाँ होती थी, वो जैसे हम सब अभी आम की चटनी या कोई भी चटनी खाते हैं तो एक सिलबट्टे से पीसा करते थे, करेक्ट? अब मेरे ख्याल से वो ऑब्सोलीट हो गया, आपके घर में भी मिक्सर ग्राइंडर होगा, हमारे घर में नहीं, मिक्सर नहीं, बिल्कुल ग्राइंडर होगा। चलता है। टेक्नोलॉजी ने वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लीप लिया। इनफैक्ट मेरी नानी जो वाइफ की जो नानी है वो पहले उससे पीसा करती थी, अब इससे पीसा कर रही थी। तो मैंने बस वहीं से स्टार्ट किया, तो उनको बताया था कि हाउ टेक्नोलॉजी हेल्पिंग अस इन इवोल्यूशन। फिर हमने कुछ अपने प्रोडक्ट्स बताए थे जो हमने बनाए थे, जैसे एक अभी ये अपना फाइजर टेक्नोलॉजी, हम ड्रोन्स पे काम कर रहे थे, जब भी जो हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग सिस्टम बनाया था लोगों की मतलब जान बचाने के लिए। एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग सिस्टम में तो यू वुड से कि वी गॉट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। जो सीआरपीएफ है वहाँ वाले, उन्होंने बोला सर आपने हमारी लाइफ काफी आसान कर दी, क्योंकि हमें बार बार टोकना पड़ता था, अब हमें टोकना नहीं पड़ता, मशीन टोक रही है। और हम कैप्चर भी करते थे इमेजेस, फिर जो सान्याल मैम थी वहाँ की डायरेक्टर थी, उनको हम दिखाते थे। तो दैट वे मुझे लगता है कि हमने एटलीस्ट कुछ लोगों की जान तो जरूर बचाई होगी फ्रॉम गेटिंग कोविड एटलीस्ट। तो टेडेक्स से मुझे वो सारा सब कुछ शेयर करने को मिला। अगेन ऑन करियर लेवल या पर्सनल फ्रंट पे मैं बोलूंगा तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। टेडेक्स क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो आई वाज एबल टू जो भी मेरे थॉट्स हैं या जो भी मेरे वर्क है, मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जा पाया, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था मेरे लिए। अमेजिंग। एंड अभिषेक जी, एक और पॉइंट आता है, क्योंकि आप जिस टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, और इंडिया में देखिए कंप्यूटर इंजीनियर्स की लाइन लगी पड़ी है ना? जी। टेक के बहुत लोग हैं, पर एफिशिएंट लोग नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी में कैसे रोल्स रिक्वायर्ड है, कभी किसी को इंटर्नशिप लेनी हो या किसी को जॉब लेनी हो? जी बिल्कुल। तो हमारे कंपनी में काफ़ी इंटर्न है आज के डेट में, अगर मैं बताऊँ तो एज ऑफ नाउ मेरे अंडर ही कुछ 8 से 10 इंटर्न है जो काम कर रहे हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे। कुछ लोग ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं, अलग अलग, मतलब अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियर बोला, कंप्यूटर इंजीनियर तो है ही, जो C++ पे काम करते हैं, कुछ पाइथन पे काम कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बच्चों के हिसाब से बताऊं तो लैंग्वेज के हिसाब से C++ हो गया, पाइथन पे हम काम कर रहे हैं। हम मैकेनिकल डिजाइन पे भी काम कर रहे हैं कि हम ड्रोन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकें। और यू वॉन्ट बिलीव कि बच्चों के आइडियाज कई बार बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। रिसेंटली हमने अपने अपना प्लेन भी लॉन्च किया था जो कि फ्लाई करता है, मतलब टेक ऑफ करता है ड्रोन की तरह, फ्लाई कर रहा है फॉर लॉन्ग रेंज ऑफ, जैसे आपको कभी 2 घंटे 3 घंटे बॉर्डर्स के एरिया में आपको सर्वेलेंस करना है, तो जनरली आपने देखा होगा जो ड्रोन्स होते हैं आजकल के, वो 20 25 30 मिनट ही उड़ पाते हैं, ज्यादा नहीं उड़ पाते हैं। बट कुछ सेंसिटिव ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे आपको 3 घंटे 4 घंटे यू नीड सम आई इन द एयर। तो वैसे टाइप के भी हम डिजाइन बना रहे हैं। तो आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चों को मतलब इनवाइट करना चाहूंगा कि दे आर इंटरेस्टेड इन ड्रोन और एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, whether they are mechanical engineer or electronic engineer or computer engineer, you guys are most welcome actually. Feel free to connect with me. बट हाँ, स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं
कि स्टूडेंट ये पूछेंगे मुझसे इफ आई रेफर देम कि उनको रिमोट इंटर्नशिप मिलेगी कि नहीं। आई गेस नहीं। नहीं, कुछ जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है उसमें वी विल बी ओपन फॉर द रिमोट इंटर्नशिप। आई वुड से 20% ऑफ द वर्क जो होता है उसमें हम वी वुड बी ओपन फॉर द रिमोट इंटर्नशिप। बाकी अगर स्टूडेंट इंदौर के हैं तो आई वुड लव कि रोज नहीं आए, बट आए, हफ्ते में 1 बार आए, 2 बार आए। आई नो कि दे आर स्टूडेंट, उनके कॉलेजेस होते हैं, उनके बैचेस होते हैं, बट सैटरडे या संडे एक दिन आ सकते हैं और वीक में कोई दिन निकाल सकते हैं जहाँ पे हम 2-3 घंटे मिलकर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, जो उन्होंने किया उसको रिव्यू कर सकते हैं। अभी भी हम वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं। वी आर नॉट कॉलिंग स्टूडेंट एवरी डे, क्योंकि देखो आप भी कॉलेज से निकला, मैं भी कॉलेज से निकला, और मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे अपने कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय ना करें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दे लर्न अ लॉट अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप ऑल्सो। बट हाँ ठीक है, क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विद एन इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन होती है, तो कम ट्वाइस अ वीक। जरूरी नहीं कि आप सुबह ही आए, आप कॉलेज खत्म करिए 4 बजे आए। तो जनरली मैं जो मेरी रूटीन है, मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक काम करता हूँ, तो उसके बीच में आई यूज टू मीट दिस। टिपिकल एंटरप्रेन्योर। करना ही पड़ता है, मतलब यू डोंट हैव एनी अदर करना ऑप्शन। ही पड़ेगा। सो अभिषेक जी, इसी पॉइंट को एक्सटेंड करना चाहूंगा मैं। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स को, फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? बड़ा मुश्किल है ये। थोड़ा चाहिए। थोड़ा ज्यादा। हाँ, वाइफ काफी सपोर्टिव है। मेरी एक बेटी है 8 साल की, अनाया, शी इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। मतलब उसे पता है कि पापा क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करती है। फॉर्चुनेटली वाइफ भी मेरी काफी सपोर्टिव है। इनफैक्ट वाइफ एक वर्टिकल भी देखती है पाइजर का, जो बेसिकली सीपीओ, चीफ पीपल ऑफिसर, शी मैनेजेस इंटरेक्शन विद द टीममेट। जैसे हम बताएं तो एक हमारी फिलोसफी है कि हम वुमेन्स को भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो जो हमारा एक जो एडटेक का वर्टिकल है, पूरा का पूरा वुमेन्स ही ड्राइव कर रही हैं एंड रिमोटली ड्राइव कर रही है, मैं आपको बता, क्योंकि उसमें हम जो रिमोट सेल्स करते हैं उसमें हमें ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इंदौर से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हैं उसमें लोग। जम्मू से हैं एक, उसके बाद इंदौर से हैं, साउथ से है, वेस्ट बंगाल से है। तो अलग अलग जगह की मैरिड फीमेल है, मतलब जिनको वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम, एंड पैरेलली वो हमारे लिए काम भी कर रही है। तो वाइफ उसको भी लीड करती है। तो काफी सपोर्टिव है वाइफ मेरी बेसिकली, तो उससे काफी हेल्प मिल जाता है। पेरेंट्स भी काफी, पापा मेरे काफी सपोर्टिव है कि says कि ठीक है, टेक रिस्क देन ओनली यू विल सक्सीड। तो घर वालों का सपोर्ट है, वरना नहीं कर पाते ऑनेस्टली स्पीकिंग। अमेजिंग। एक और क्वेश्चन है कि सपोज अपन ये माने कि ये इंडस्ट्री है हाँ और आप है, उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, हाँ। कैसे मैनेज करेगा? मैं तो बेसिकली अभी जो ड्रोन इंडस्ट्री है या यूएवी इंडस्ट्री है ना, इसको मैं अगर ऐसे बोलूँ तो ये सनराइज इंडस्ट्री हम इसको बोल सकते हैं। अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो मेरे पास डेटा है, मतलब 194 से 195 कंपनियां हैं जो ड्रोन्स पे काम कर रही हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे तो 20% कंपनियां जो सही में R&D कर रही है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बट चूंकि ये सेक्टर इतना बड़ा है और इंडिया में भी पेनिट्रेशन बहुत कम हुआ है, तो अभी सबके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट सैचुरेट हो गया, तो जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ही ज्यादा मार्केट में ड्रोन का एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा, तो सबके लिए ही विन विन रहेगा, जैसे आप देखें तो। दूसरा क्या है कि ना, अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा ड्रोन हमारे इंडिया में जो है ना, वो चाइनीज ड्रोन ही है। तो हमारा कंपटीशन ना आपस में नहीं है, हमारा कंपटीशन एक बड़े जाइंट के खिलाफ है कि पहले हम अपना मार्केट तो कैप्चर करें। ठीक है, विल कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इन फ्यूचर, जब हम ये पूरा 100% कैप्चर कर लेते हैं, देन विल कम्पीट कि हाँ क्या है। बट अभी तो वी हैव अ लॉट 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 फॉर ईच ऑफ देम टू ग्रो एंड एक्सेल। दैट्स अमेजिंग। और अभिषेक जी, फाइनल क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपनी देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है और आपका क्या विजन है इंडिया के लिए आफ्टर तो 10 इयर्स? हाँ, तो जैसे अगर आप लिंक्डइन पे देखते हैं तो मेरी कंपनी में हमने लिख रखा है भरोसा भारत का। तो ठीक है, वी आर नॉट सोल्जर बाय प्रोफेशन बट बाय हार्ट, यू आई एंड वी ऑल आर सोल्जर। तो देखिए ड्रोन में जैसे जो हम अभी एंटी ड्रोन पे काम कर रहे हैं ना, वो हमारा एम ही ये है कि हम अपने इंडिया की, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा बॉर्डर सिक्योर करें। तो इसमें हमने हम बेसिकली दो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। एक को हम बोलते हैं कवच, एक को हम बोलते हैं प्रहार। कवच में हम डिफेंड करेंगे, किसी भी एनिमी ड्रोन को डिटेक्ट करेंगे और नोटिफाई करेंगे, और प्रहार में विल गो एंड न्यूट्रलाइज इट। तो इस पे हम काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा हम R&D कर रहे हैं। प्लस एक जैसे अभी आज की डेट में हम, आप और मैं फोन वगैरह यूज करते हैं, तो हम एंड्रॉइड यूज करते हैं या iOS यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मेक इन इंडिया नहीं है, एंड्रॉइड ना ही एंड्रॉइड अपने। हम लेकिन ड्रोन के केस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प, विद एसोसिएशन विद IIT इंदौर हम लोग।
तो हमारा एम है कि हम अपने ड्रोन का एक मेक इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं। जैसे अभी एक रिसेंट इंसिडेंट आपको भी पता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक हुआ था, दैट वाज अनइंटेंशनल, बट लगभग अपने सारे एयरपोर्ट जो है काइंड ऑफ वी कैन से कि ऑपरेशन जियोपार्टाइज हो गया था, करेक्ट, दैट वाज अनइंटेंशनल। अब आप सोचिए कभी कोई इंटेंशनली करना चाहे तो क्या होगा, आपके सारे प्लेन्स बैठ जाएंगे। सिमिलरली डिफेंस में अगर हमारे ड्रोन्स के अगर हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और कोई इंटेंशनली अगर उसको रोकना चाहे तो विल बी हेल्पलेस। तो वो सारा विजन है हमारा कि हम अपने देश को, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, मेक इन इंडिया करें, अपने देश को आत्मनिर्भर करके आगे बढ़ाएं। वी आर टोटली अलाइंड विद दैट। अभी माननीय सांसद जी के साथ हमने एक सीडिंग का ऑपरेशन किया था थोड़े दिन पहले, पीपल के बीजों के साथ, क्योंकि जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था एक पेड़ माँ के नाम, हमने पेड़ लगाए। फिर हमें आइडिया है कि क्यों ना हम मतलब पीपल के बीज, जैसे आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ जो होते हैं बहुत ड्रोन आसानी से से आप उगते उसको हैं। हाँ, ड्रोन से हम उसको पहाड़ों पे हम उसको गिरा रहे हैं, ताकि वहाँ पे जनरली कॉमन पीपल के लिए जाना मुश्किल होता है, बट ड्रोन से हम इजिली जा सकते हैं। तो इंदौर और नियर बाई एरिया जो है हमने पहाड़ों पे सीडिंग करी, एंड वी आर वेरी होपफुल कि कुछ पेड़ तो आएंगे आएंगे, हजारों में आएंगे, क्योंकि हमने लगभग 10 से 12 लाख जो बीज हैं, मतलब 4-5 किलो का बीज हमने गिराया अलग अलग एरिया। तो दैट वे वी आर ट्राइंग टू हेल्प द नेशन एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो। समझा। क्योंकि बेसिकली मैं इंदौर में, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इन्होंने 15 लाख पेड़ लगा दिए। मैंने कहा हाउ इट्स पॉसिबल, मैंने कहा अच्छा आज उसका आंसर मिलेगा। ओके, इन्होंने ड्रोन से करा होगा कुछ ऐसा। नहीं, तो 15 लाख उन्होंने तो लगाए हैं, हाथ से ही लगाए हैं, ये हमने बीज से किया है। तो बीज से जो डेटा हमने जो कृषि वैज्ञानिक से पूछा है, ऐसा होता है कि अगर आप 100 पीपल की बीज गिराते हैं कहीं पे, तो रफली 10 से 12 पेड़ उगते हैं उसमें, क्योंकि कुछ इधर उधर लॉस आउट हो जाते हैं, फिर कुछ 50% जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं उनमें भी कुछ पशु वगैरह खा लेते हैं, तो जो बचता है उसमें 10 से 12% का होता है जो कि रियल पौधा बनता है। उसको एस्टिमेट करते हुए हमने काफी ट्राई किया है कि कुछ 1 लाख के आसपास पौधे तो उग जाए आसपास के एरिया में। और अभी मौसम भी अनुकूल है, जैसे कि बारिश हो रही है, तो इट्स परफेक्ट टाइम फॉर जर्मिनेशन। दैट्स अमेजिंग अभिषेक। तो ये ड्रोन्स वाटरप्रूफ रहते हैं? हाँ, दे आर वाटर रेजिस्टेंट। अगर आप पानी के अंदर डूब जाए तो प्रॉब्लम है, बट जैसे अभी माइल्ड बारिश में उड़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रीटी मच वाटर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अ पॉडकास्ट। आपका दिन शुभ थैंक यू सो मच सार्थक जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर कनेक्टिंग विथ यू, एंड थैंक यू सो मच टू योर ऑडियंस ऑल्सो फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।